যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি, দশম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 177 থেকে কন্টিনিউ করব। 177 থেকে আজকে 190 অব্দি হবে, বেশি শ্লোক নেই। এরপর আমরা আজকে ড্রামা দর্শন করব, তারপর কাহুত হবে। একাদশী ড্রামা আজকে দর্শন করব। 177 নম্বর শ্লোক। বিল্বমঙ্গল কইল জয়ছে দশা আপনার, বিল্বমঙ্গল কইল যেছে দশা আপনার, ইহা দেখি সেই দশা হইল আমার। ইহা দেখি সেই দশা হইল আমার। শ্লোকার্থ। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি ত্যাগ করে সবিশেষ ভগবানের সেবার পথ অবলম্বন করেছিলেন। একে দর্শন করে আমরাও ঠিক সেই দশাই হয়েছে। एके दर्शन करे, एके मतलब ये दर्शन, भारती जी बोल रहे हैं कि जैसे बिल्वमंगल ठाकुर का वो मैं समझा, वो मैं समझा। एके दर्शन करे, एके माने আমার ঠিক সেই দশাই হয়েছে। एक मिनट, हिंदी में क्या लिखा है? एके माने अपना के। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी दशा भी उन्हीं जैसी हो गई है, क्योंकि अब यह बदल चुकी है। ये हिंदी में ये लिखा, मतलब एक नहीं, ओखाने यही दशा हो गई। I now see that my condition is similar to his, Yeah. for it has already changed. I now see that my condition is similar to his, for it has already changed. I think. Yes, any other comment? Himadri Prabhu, Rajibang Prabhu, Sumana Gorangi Mataji? तो वो हरे हिंदी में कृष्ण ठीक लिखा है। চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে মনে হচ্ছে। একে বলে, ওই জন্য এইভাবে সম্বোধন করা হয়। এখানে দেখার মানে দর্শনের মানেটা দেখা নেই অ্যাকচুয়ালি। এখানে এটা কম্পারিজন করছে ওই স্টেট থেকে, যা ওনার অবস্থা ছিল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর এই অবস্থায় এনার I'm talking about the grammatical aspect of the sentence. একে দর্শন করে আমারও ঠিক সেই দশা হয়েছে। Please answer to the point. एके दर्शन करे, एके माने कोई वस्तु को या कोई I don't know, कोई थर्ड पर्सन को बोला जाता है एके, you're talking to the second person and third person को बोला जाता है এনাকে দর্শন করে আমার সেই অবস্থা হয়েছে। If it is wrong then we'll forward it. হিন্দিতে ওটাই লেখা আছে অ্যাকচুয়ালি। ये हिंदी बंगाली का नहीं। Any other comment? इंद्राणी माताजी? চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে ওনার যেমন ওনার হয়েছিল, আপনাকে হবে না, একে হবে না, আপনাকে দর্শন করে। না একে তুই কাউকে বোঝা, ওনার তো আগে সম্মান করছিল না, মানে বুঝতে পারেনি, পরে তো বুঝেছে যে এটাকে দেখে এরকম হলো। একে বলতে পারে না সম্মান, একে বলাই যায়। এখানে কিছু একটা ভুল আছে। কিন্তু মহাপ্রভুর সঙ্গে মহাপ্রভুকে এভাবে বলা যায় না। হ্যাঁ, ওকে। প্রথমে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অদ্বৈতবাদী ছিলেন। সরি, ইয়েস, পঙ্কজ প্রভু। তাৎপর্য, প্রথমে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্ম জ্যোতির ধ্যান করতেন। পরে তিনি কৃষ্ণ ভক্তে পরিণত হন। তার সেই পরিবর্তনের কারণ ভক্তিরসামৃত সিন্ধু থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি এবং সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মা উপলব্ধির পর ধীরে ধীরে ভগবান উপলব্ধির অতি উন্নত স্তরে উন্নতি হওয়া যায়। সেই কথা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদে রচিত শ্রী চৈতন্য চন্দ্রামৃত নাটকে পাশে বর্ণিত হয়েছে। कैवल्यम नरकायते त्रिदश पुराकाश पुष्पायते। This your own personal tune won't work. The standard tune has to be sung. কি স্ট্যান্ডার্ড আছে এখানে? आप तो किया उस दिन अच्छा से। केवलम नरकाय, कैवल्यम नरकायते त्रिदश पुराकाश पुष्पायते दुर्दान्तेन्द्रिय काल सर्प पटली वोत्खात द्रष्टायते विश्वं पूर्ण सुखायते विधिं महेन्द्रादिश्च कीटायते यत्कारुण्यकटाक्ष वैभवतां तमगौरमेव स्तुम।
भक्त को केवल हिंदी যিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু করুণা কটাক্ষ রূপ বৈভব লাভ করেছেন সেই ভক্তের কাছে যোগীদের আরাধ্য পরম পদ কেবল নরক তুল্য কমিগণের স্বধর্ম নিষ্ঠতার ফল স্বরূপ সঙ্গ মিথ্যা কিঞ্চিত আকাশ কুসুমের মতো যথেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয় পরায়ণ বিষয়ীদের পক্ষে দুর্দমনী ইন্দ্রিয়গুলি ভক্তের নিকটে উৎপটিত দন্তকাল সর্প সদৃশ एवं जगत कृष्ण आनंदमय एवं যার কৃপার প্রভাবে ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি সর্বোচ্চ পদার্থ দেবতাদের লোভনীয় পদ কীটের মতো তুচ্ছ বলে মনে হয় আমরা সেই ভগবান শ্রী গৌর সুন্দরের স্তব করি এই চৈতন্য চন্দ্রামৃত নাটকে এই তত্ত্ব বর্ণনা করে আরো বহু শ্লোক রয়েছে प्रभु ये मेरा इसमें नहीं है हिंदी में आप पढ़ लीजिए तो मेनली श्री चैतन्य चंद्रामृत नाटक के यही तत्व कौन सा तत्व का इधर आलोचना हो रहा है कौन बता पाएंगे आप लोग प्रभु जी मायावादी का हो रहा है नहीं मायावादी इज वेरी वास्ट इतना मायावाद में बहुत तत्व है जो वैष्णव सिद्धांत से मिलता जुलता नहीं है उनमें से कौन सा तत्व अभी इधर आलोचना हो रहा है यस विनीता अग्रवाल माता जी प्लीज हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम डोंट बीट अराउंड द बुश एक सेकंड डोंट बीट अराउंड द बुश यू अंडरस्टैंड बीटिंग अराउंड द बुश भगवान एक हाँ सेकंड प्रभु इधर उधर का हाँ एक सेकंड जाइए भगवान के तत्व के विषय में हो रहा है ये देखिए भगवान के तत्व के विषय में हो रहा है नहीं भगवान की भक्ति के विषय में यू नो कभी कुछ अगर प्रश्न पूछा जाए तो एक तो है मैं इसीलिए पूछता हूँ क्योंकि आई वांट टू नो कि आप लोग ये टेक्स्ट में घुस रहे या नहीं क्योंकि बहुत लोगों को बंगाली पढ़ना नहीं आता है तो जब प्रभुपाद का तात्पर्य आता है ना तो छोड़ ही देता है मैं इसीलिए बीच बीच में पूछते रहे प्रभु जी एक चीज अभी जो आप ये एक सेकंड सुन लीजिए पहले अगर कुछ प्रश्न पूछा जाए तो एक तो आंसर टू द पॉइंट एकदम टू द पॉइंट डोंट बीट अराउंड द बुश अभी भगवान का तत्व आलोचना हो रहा है भगवान का अनगिनत तत्व है कौन सा यहाँ प्रसंग कौन सा है यस बोलिए विनीता माता प्रभु जी अभी जो आगे के श्लोका में आप बोल रहे थे ना कि एक का किसके लिए हुआ है तो प्रभु जी वो वाला थोड़ा क्लियर करते ना कि कल जो ब्रह्म करके एक जो थे ब्रह्म जो बाद पहले निर्विशेषवादी थे और बाद में जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उनको कृष्ण में वो और यहाँ पे चल रहा है क्या ओके यहाँ यही प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्म में विलीन होना तुच्छ है ये कोई मानता नहीं है अगर कोई भगवान का स्वविशेष रूप का दर्शन कर लिया सोचिए हम लोग को भगवान का स्वविशेष रूप के बारे में थोड़ा तो कुछ ज्ञान हुआ अभी आप लोग में से कौन मृत्यु के बाद ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहेंगे कोई हाथ नहीं उठा रहे हाँ निर्विशेष का यस तो वही निर्विशेष ब्रह्म का कोई उपासना नहीं करना चाहेंगे अगर कोई भगवान का स्वविशेष रूप का दर्शन किया या ज्ञान प्राप्त किया तो निर्विशेष रूप तुच्छ हो जाएगा यही आलोचना हो रहा है इसके लिए वो यहाँ पे वो लोग सब लोग यहाँ पे अभी हैं वो लोग सब वही पूछना चाह रहे थे प्रभु मतलब वो जो ब्रह्म जो पूरा नाम उनका याद नहीं आ रहा मेरे भारती हाँ ब्रह्मानंद भारती वो और अभी जो चैतन्य महाप्रभु हैं और बिल्व ठाकुर हैं ये लोग सब लोग क्या एक साथ अभी हैं अरे कृष्णा बिल्व मंगल ठाकुर का श्लोक कोट किया बिल्व मंगल ठाकुर वहाँ उपस्थित नहीं है प्रभु मेरे को बंगला में ना पूरा नहीं समझ में आता इसीलिए बोलते थोड़ा हिंदी में बोल दिया यही मेरा सेवा है हमारा ये उसीलिए मैं बहुत श्लोक ले लेता हूँ कि हम देखते हैं बहुत लोग कुछ प्रश्न नहीं पूछता है तो पूछेगा नहीं मैं तो फुल स्पीड भागूंगा अगर मैं 2 भी श्लोक या 1 भी श्लोक कराऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये कोई कंपटीशन मैराथन नहीं है कि कौन 1 महीना में चैतन्य चरितामृत खत्म कर देगा उसको परमवीर चक्र मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है हाँ या प्रश्न करते रहिए जब तक समझ में नहीं आता है मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ तो ये बिल्व मंगल कोई छे माने जैसे बोलते ना कबीर ने कहा हम लोग कुछ कभी कभी कबीर का श्लोक कोट करते हैं ना ऐसे माने दैनंदिन जीवन में कबीर ने कहा ऐसे तो वैसे बिल्व मंगल कोई छे जो इच्छे दशा अपना यहाँ देखी সেই দশা হইল আমার जैसे बिल्व ठाकुर का हुआ था दशा
वो भी पहले निर्विशेष ब्रह्म का आराधना करता था, बाद में भगवान का साकार रूप का आराधना कर रहा है दर्शन करने के बाद, क्योंकि उनको निर्विशेष ब्रह्म फिर तुच्छ हो जाता है। वैसे ही मेरा दशा हुआ ब्रह्मानंद भारती बोल रहे महाप्रभु को। मैं भी भारतीय संप्रदाय यानी शंकर संप्रदाय यानी मायावाद संप्रदाय से हूँ, और हम आप ही का ब्रह्म ज्योति का आराधना करते थे, लेकिन आपका दर्शन करने के बाद अभी हम वो तुच्छ लग रहा है ब्रह्म में विलीन होना। हाँ, Yes. अब समझ में आया प्रभु जी। श्रीमती राधिका माता जी। ओके, उसमें बोल रहे थे। यस, कंटिन्यू पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये धिक कुर्वन्ति चाहिए आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरे पास हिंदी में नहीं आएगी। শ্রী চৈতন্য চন্দ্রামৃত নাটকে এই তত্ত্ব বর্ণনা করে আরো বহু শ্লোক রয়েছে। কোন তত্ত্ব? এই তত্ত্ব के ब्रह्म ज्योति में विलीन होना ये तुच्छ है। आरो और भी बहुत श्लोक है, कविराज गोस्वामी सॉरी प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जैसे तो इसमें एक मीनिंग और भी है कि जो लोग भगवान का सविशेष रूप वाले, वो उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते, तुच्छ मानते हैं। Yes. स्वयं को भी वैल्यू नहीं देते हैं। धिक्कुर्वन्ति च ब्रह्मयोग विदुषस् तम गौरचंद्रम नमः। ये एक ठो है, ये 6 नंबर चैतन्य चंद्रामृत 6 नंबर। दूसरा क्या है? तावद ब्रह्म कथा विमुक्त पादवी तवम न तिक्ति भवे तव चापि विनिष्खलत्वम अयाति नो लोक वेद स्थिति तावत् शस्त्र विधम मिथ कल नाना बहिर्व मत्ससु श्री चैतन्य पदाम्भुज प्रिय जनयवन्नादिक गोचरः। ये चैतन्य चंद्रामृत 19 नंबर से लिया गया है। गौरश्चौर शकलम अहरत् कोऽपि मे तीव्र वीर्यः। निर्विशेष, यस कंटिन्यू प्रभु। निर्विशेष ब्रह्म आलोचना भगवत भक्तेर काছে মোটেই আস্বাদনীয় নয়। ভক্তের কাছে তথাকথিত শাস্ত্রবিধি অর্থহীন বলে মনে হয়। বহু লোক শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্ক করে, কিন্তু ভক্তের কাছে সেই সমস্ত আলোচনা কেবল কোলাহলের মতো বলে মনে হয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রভাবে এই সমস্ত সমস্যাগুলি অন্তর্হিত হয়। अंतर्हित है माने all these have been resolved after descent of गौरांग महाप्रभु। बहुत तत्व, बहुत तर्क वर्क, ये सब पूरा क्लैरिफाई कर दिया महाप्रभु। महाप्रभु का प्रीचिंग वाज सुपर इंटेलिजेंट। विद नियोफाइट डिवोटीज महाप्रभु ने क्या किया? तत्व आलोचना किया? एकदम नहीं। नियोफाइट डिवोटीज को क्या किया महाप्रभु? कीर्तन किया, हरिनाम कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, नियोफाइट डिवोटीज डांसिंग कीर्तन। लेकिन जब बाई टच उनको भक्त बना दिए, डार्लिंगम किया। या और जो एक्सॉल्टेड डिवोटीज है, बहुत हाई स्टैंडर्ड डिवोटीज है, उनके साथ क्या किया महाप्रभु? कृष्ण तत्व के बारे में आलोचना किया। उदाहरण है रामानंद भट्टाचार्य है। भट्टाचार्य नहीं, वो क्या एक्सॉल्टेड डिवोटी? वो तो मायावादी था। तो उसके साथ क्या डिस्कस किया? वो तो गलत बोल रहा था सब पहले साथ। रामानंद राय। हाँ, उनके साथ आलोचना किया। अच्छा या तो महाप्रभु के ये अलग अलग, और जो थोड़ा डेंजर था, डेंजर जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती और क्या हो रहा है केशव कश्मीरी, इन लोग का सामने महाप्रभु ने क्या किया? उनका स्टाइल पूरा अलग हो गया। पहले जाके मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो एकदम पापी हूँ, मैं तो एकदम नग्न, मैंने इनसिग्निफिकेंट, नगण्य। फिर क्या हुआ? ऑटोमेटिकली उन लोग का जो सेल्फ ईगो वो टूट जाएगा, उन लोग अपना तत्व देगा, फिर महाप्रभु एक एक करके खंडन करेगा। ऐसे ही हुआ है ना? सो दीज वर द डिफरेंट टैक्टिक्स महाप्रभु यूज्ड, प्रीचिंग टैक्टिक्स विद डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। हरे कृष्णा प्रभु, और जो बौद्धिज्म के साथ वो यूज किए थे वो किस में आएगा? जो बौद्धिज्म गुरुज थे, बुद्धिज्म के साथ तो कुछ आलोचना ही नहीं हुआ, वो तो डायरेक्ट कृपा है। वो तो डायरेक्ट कृपा। जब बुद्धिस्ट लोग देखा कि हम लोग मांस, वो कुछ खराब चीज हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, पंछी आया उनको लेने नहीं दिया, और उल्टा ये प्लेट लेकर ऊपर गिरा दिया, और पूरा हमारा जो बुद्धिस्ट का लीडर है उसका सर फुट गया।
तो सब वो घटना देखकर लोग शिक्षा आ गया कि साक्षात भगवान है, इनको हम लोग कुछ क्षति नहीं कर पाएंगे। तो दे लर्न थ्रू इंसिडेंट। बुद्धिस्ट फिलोसफी के कुछ आलोचना ही नहीं कर पाए, उतना हुआ ही नहीं आलोचना उतना। हाँ, बुद्धिस्ट के वो लीडर के साथ थोड़ा आलोचना हुआ था। यस हुआ था। वो उनका जो लीडर था, तो लीडर कन्विंस नहीं हुआ था एक्चुअली। आपको अगर याद है, इन लोग आलोचना किया महाप्रभु और बुद्धिस्ट वाला जो लीडर था, और बुद्धिस्ट लोग शून्यवादी पे विलीन मानते हैं। शून्यवादी यानी मृत्यु के बाद निर्विशेष ब्रह्म नहीं, सॉरी, शून्य यानी मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म। लेकिन महाप्रभु ने उसको खंडन किया। लेकिन बुद्धिस्ट जो लीडर था वो कन्विंस नहीं हुआ था, वो लोग चला गया था। फिर चला जाकर उन लोग षड्यंत्र किया, वो गलत चीज प्लेट में लाकर महाप्रभु को बोला ये महाप्रसाद है आपके लिए। फिर वो घटना से उन लोग को शिक्षा मिला महाप्रभु के। यस 178 नंबर श्लोक। जब उन्होंने अपना सुप्रीम पावर दिखाया तो उनको विश्वास हुआ कि जो चील आकर जब उनका योजना विफल हुआ बाई विल ऑफ, मतलब ऊंचा हाई पावर देख के, तब उनको ये समझ में आया। हाँ 178 नंबर श्लोक। अभी ये श्लोक तो बिल्व मंगल ठाकुर रोचित। अभी हम लोग जो श्लोक पाठ करेंगे ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से ये श्लोकटी उल्लेख करा হয়েছে। ये सब प्रूव करा रहे ब्रह्मानंद भारती। क्या प्रूव करा रहे कि ब्रह्म ज्योति में आराधना ये तुच्छ है। अद्वैत विधि पथिके रूपाश अद्वैत विधि पथिक पाश स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा साथेन केनापि वयं हथेना साथेन बेनापि वयं हतेन दासीकृत गोपवधूवितेन दासीकृत गोपवधूवितेन। हरे कृष्णा। सो देखिए, मैं उस दिन भी क्लास में डिस्कस किया था कि श्लोक को देख के कैसे पता चलेगा कौन सा ट्यून होगा। तो ये श्लोक आप लोग गौर से देखिए, श्लोक को गौर से देखिए। आप लोग हिंदी या बंगाली जो भी आप लोग फॉलो कर, गौर से देखिए। बीच में कॉमा दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, अगर कॉमा है तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, टोटल कितना पार्ट है इसमें, इस श्लोक में? 4 पार्ट है। ठीक है, टोटल 4 पार्ट है श्लोक में। तो पहला पार्ट को लीजिए। पहला पार्ट में आपको थोड़ा एक्चुअली वो एक साथ दिया हुआ है, वही दिक्कत होता है हिंदी और बंगाली में। इंग्लिश में क्या है, श्रील प्रभुपाद ने डैश डैश करके दिया है। अद्वैत डैश विधि डैश पथिकेत डैश उपास्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, हिंदी में भी डैश है। डैश है, 4 पार्ट में दिया हुआ है क्या? जी जी हाँ, ये वाला श्लोक 4 पार्ट में दिया हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो फिर आपको मालूम है 4 में क्या होता है? ना 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 ना। ठीक है, 4 वाला पार्ट में ऐसे ट्यून होता है। 3 वाला पार्ट में क्या होता है? भगवत गीता को भी श्लोक ले लीजिए, मैक्सिमम श्लोक 3 वाला पार्ट में है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु ना 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 ना। वो वाला भगवत गीता का नंबर 1 ट्यून है। दूसरा ट्यून क्या है? ना 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 ना। वो दूसरा वाला ट्यून है। ठीक है, भगवत गीता का दूसरा ट्यून। और तीसरा ट्यून क्या है? तीसरा ट्यून यही है जो मैं अभी पंकज प्रभु जी ट्राई किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कब होगा? ये तब होगा जब श्लोक में 5, 6, 7, 8 वर्ड है, तब ये वाला ट्यून आएगा। अदरवाइज भगवत गीता का पहला श्लोक या पहला ट्यून या दूसरा ट्यून। और अधिकांश चैतन्य चरितामृत का ट्यून कैसा है? ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। अधिकांश चैतन्य चरितामृत का यही ट्यून है। तो टोटल कितना ट्यून हुआ? 4 ट्यून। 2 भगवत गीता का, 1 चैतन्य चरितामृत का स्टैंडर्ड ट्यून, और चौथा वाला जो है अगर बहुत लंबा श्लोक आ गया तो यूजुअली वो ट्यून उसमें फिट होता है।
वो जो कोट किया हुआ श्लोक है वही थोड़ा डिफरेंट होता है प्रभु चैतन्य चरितमृत में, बाकी तो सब लगभग एक ही है। करेक्ट। ओके, অনুবাদ। ব্রহ্মানন্দ ভারতী বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত একটি শ্লোকের উল্লেখ করে বললেন, অদ্বৈত মার্গের পথিকদের দ্বারা উপাস্য আর আত্মানন্দ সিংহাসন থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও আমি কোনো গোপবধূ লম্পট শতকর্তৃক বলপূর্বক দাসী রূপে পরিণত হয়েছে। Brahmananda Bharati concluded, although I was worshipped by those on the path of Mohinism and initiated in self-realization through yoga system, I have nonetheless been forcibly turned into a maid servant by some cunning boy who is always joking with the gopis. तो मैं जबरदस्ती मैं दासी बन चुका हूं। किसके वजह से? कोई गोप बालक जो बलपूर्वक हमको ट्रांसफॉर्म किया है, बलपूर्वक। यानी महाप्रभु को ही बोल रहा है, कृष्ण को ही बोल रहा है। तो ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में है, 179 নম্বর শ্লোক। প্রভু কহে কৃষ্ণ তোমার গাঢ় প্রেম হয়, প্রভু কহে কৃষ্ণ তোমার গাঢ় প্রেম হয়, যাহা নেত্র পরে তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয়। যাহা নেত্র পড়ে তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরায়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার উত্তরে বললেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনার গভীর প্রেম, তাই যেখানেই দৃষ্টিপাত করেন সেখানেই আপনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ভট্টাচার্য কহে দোহার সুসত্য বচন, ভট্টাচার্য কহে তোহার সুসত্য বচন, আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন, আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন, প্রেম বিনা কভু নহে তারও সাক্ষাৎকার, প্রেম বিনা কহু নাহি তারও সাক্ষাৎকার, ইহার কৃপাতে হয় দর্শন ইহা। ইহার কৃপাতে হয় दर्शन इहार। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला भट्टाचार्य को? ये आपका हृदय में ना बहुत कृष्ण प्रेम है, उसीलिए आप जहां कहीं भी देख रहे कृष्ण कृष्ण ही नजर आ रहे हैं आपको। তো फिर সার্বভৌম ভট্টাচার্য ने बीच में क्या बोला? সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, আপনাদের দুজনের কথাই ঠিক, শ্রীকৃষ্ণ তার কৃপার প্রভাবে দর্শন দান করেন, প্রেম ছাড়া কখনো তার দর্শন পাওয়া যায় না। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ ভারতী ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেছেন। यानी महाप्रभु की कृपा से ब्रह्मानंद भारती भगवान कृष्ण का दर्शन लाभ पाया है। कौन बोल रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে বলেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনার গভীর প্রেম, তাই আপনি সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ ভারতী এই কথোপকথনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য মধ্যস্থ ছিলেন এবং তিনি রায় দিয়েছিলেন যে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মতো ঐকান্তিক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। শুদ্ধ ভক্তের সামনে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে প্রকাশ করেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী ছিলেন একজন অতি উন্নত মার্গের ভক্ত। देखिए प्रभुपाद क्या वर्ड यूज कर रहा है, অতি উন্নত मार्गेर भक्त, एडवांस डिवोटी नहीं लिख रहा है प्योर डिवोटी। क्यों? क्योंकि वो तो निर्विशेष ब्रह्म का उपासना करता था। ব্রহ্মানন্দ ভারতী ছিলেন একজন অতি উন্মত্ত মার্গের ভক্ত। তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে श्रीकृष्ण के दर्शन करेছিলেন। हरि बोल। उन्होंने किस रूप में भगवान का दर्शन किया? महाप्रभु रूप में दर्शन किया। ब्रह्म संहिताय বলা হয়েছে, प्रेमांजना चरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। प्रेम रूप अंजनेर द्वारा रंजित नयने भक्तरा सर्वदाई ताদের হৃদয়ে অচিন্ত গুণ স্বরূপ শ্যাম সুন্দরের রূপ নিরন্তর দর্শন করেন। আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু কি কহ সার্বভৌম, प्रभु कहे विष्णु विष्णु की कह सार्वभौम, স্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ,
स्तुति है ये निंदा लक्षण। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोला, आपने भगवान श्री कृष्ण को कौन रूप में दर्शन किया? महाप्रभु रूप में। महाप्रभु रूप में, यानी ब्रह्मानंद भारती के सामने भगवान साक्षात खड़े हैं महाप्रभु रूप में। तो यही बोला। तो अभी ये सुनकर महाप्रभु क्या बोल रहा है? विष्णु विष्णु, छी छी छी, ऐसे मत बोलो, तुम बोलो मैं भगवान हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु বললেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য আপনি কি বলছেন? শ্রী বিষ্ণু আমাকে রক্ষা করুন, বিষ্ণু বিষ্ণু। এই ধরনের অতিস্তুতি নিন্দার নামান্তর, ये निंदा है, माने ऐसा नहीं करना चाहिए। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বিবৃতি শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লজ্জিত হয়েছিলেন। তাই তিনি বিষ্ণু নাম উচ্চারণ করেছিলেন, যাতে শ্রী বিষ্ণু তাকে রক্ষা করেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে প্রতিপন্ন করছেন যে অতুস্তুতি বা অতিরিক্ত প্রশংসা এক ধরনের নিন্দা। এইভাবেই তিনি তথাকথিত অপরাধজনক বিবৃতির প্রতিবাদ করছেন। अपराध हो रहा है, ऐसे मत बोलिए ऐसे। निंदा नहीं बोला गया प्रभु ने बोला निंदा की तरह। हाँ प्रभु जी, यहाँ पे भगवान का यदि स्तुति कर गए तो उसमें तो निंदा कैसे होगा? भगवान तो का तो स्तुति मतलब कितना भी कर लो तो कम है, अति स्तुति कैसे होगा? मुंह के ऊपर प्रशंसा हो रही है ना प्रभु, तो इसलिए वो बोला कि अति। महाप्रभु ये अवतार लिए सबको बुलाने के लिए, फैलाने के लिए कि मैं भगवान हूँ। अच्छा, तो ये न तो ये अति स्तुति जो निंदा जो बोल गए हैं, ये हर जगह तो लागू नहीं होगा ना, ये कि हर समय लागू होगा ये चीज? ये टाइम एंड कौन अति स्तुति कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर कोई आदमी हमको अच्छा से पहचानता नहीं है और हमारे सामने आकर अति स्तुति यानी बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लग गया, तो इसको क्या लेना चाहिए? तो निंदा हो गया वो। हाँ, उसका जरूर कुछ माने ये निंदा की तरह ही हो जाएगा, लगा रहा है, मतलब वहाँ कुछ गलत रहेगा। हाँ, तो डिपेंड करता है स्थान काल और पात्र में अति स्तुति कौन कर रहा है। लेकिन भगवान के बारे में यदि कोई ये स्तुति करे तो अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका तो जितना भी अपुलेंसेस है कम है। हाँ, लेकिन तो महाप्रभु अभी अपना गुण कीर्तन सुनेगा सबके सामने। वो अपना नहीं, मतलब वो उस भाव में नहीं है, क्योंकि वो छुपाना चाह रहे, इसलिए नहीं। एब्सोल्युटली एक्टिंग एज ए डिवोटी, तो डिवोटी के हिसाब से वो ये कर रहे। यस, এত বলি ভারতী রে, এত বলি ভারতী রে লইয়া নিজ ভাষা আইলা, এত বলি ভারী তেরে লইয়া নিজ ভাষা আইলা, ভারতী গোসাই প্রভু নিকটে রহিলা। भारती गोसाई प्रभुर निकट रहिला। हम लोग को मालूम है, जैसे परमानंदपुरी को महाप्रभु ने अपने काशी मिश्र का घर में महाप्रभु ठहरे थे ना, तो अपने उधर ही एक रूम दिया और एक सेवक दिया। वैसे ही ब्रह्मानंद भारती को भी, जो महाप्रभु के गुरु तुल्य था, उनका भी एक रूम दिया और एक सेवक दिया था। याद है, कल हम लोग पढ़ा था शायद। এই বলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে তার বাসস্থানে মানে কাশী মিশ্র ঘর में নিয়ে এলেন। সেই থেকে ব্রহ্মানন্দ ভারতী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছেই রইলেন। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन अभी जब हम लोग लास्ट कबीरा में गए थे, तो जैसे यहाँ इतना इतना रूम जैसे बता गया होता तो दिखा, मतलब वो जैसे ये रहना चाहिए ना, जैसे महाप्रभु जो थे वो जो कोठरी में वो अलग है, तो ये ब्रह्मानंद भारती का था, ये था, वैसा कुछ नहीं है ना। पहला तो हम लोग को कंफर्म करना पड़ेगा, ये जो हम लोग सोच रहे हैं गंभीरा यही है कि नहीं। गंभीरा ही काशी मिश्र का घर है या नहीं, ये तो उसलिए मैप निकालने बोला था आपको ना, किसको बोला था मैप? पूरी का मेरे को बोले थे, हम बहु बाजार ग्रुप में डाले भी थे। मैप डाल दे, मैप मिला आपको? पूरी का मैप मिला। नहीं, पूरी का मैप में वो सब दिया हुआ है, कौन सा क्या है, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर, ये काशी मिश्र का घर दिया हुआ है उसमें? वो नहीं दिया हुआ। तो क्या है उसमें? बस मैप है। हरे कृष्णा, कौन सा होटल है और क्या 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 पकौड़ा मिल रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ट्रिप में गए थे ना, यात्रा में, वही वाला मैप था। हरे कृष्णा प्रभु जी। माय पॉइंट इज, उसमें क्या ये सब दिया हुआ है, गंभीरा ये वो दिया हुआ है क्या? नहीं प्रभु जी, ट्राई किए थे, नहीं मिला वो सब। है। अच्छा, वो चार्ट मिला किसी को? कौन सा लीला में कौन है, महाप्रभु की लीला में कौन है? है प्रभु जी की है, माने की पेशेंट दिएছেন की राजीव प्रभु शेयर किए, राजीव प्रभु दिए थे उसी दिन। पे शेयर करो। राजीव प्रभु दिए थे उसी दिन, प्रभु जी राजीव प्रभु दिए थे उसी दिन ही। अच्छा, दिए थे प्रभु ने, ओके। অনেক পিছনে চলে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, খুঁজতে হবে। ওকে, हरे कृष्णा प्रभु जी। হ্যাঁ বলুন মাতৃ প্রভু। বলছি যে প্রভু জি, যে
কাশী মিশ্র যে ঘর তার ভিতরে চৈতন্য মহাপ্রভু যে রুমে থাকতেন ওইটাকে গম্ভীরা বলা হয় আমার দূরে এটা তো আমি জানি। ওই রুমটাই গম্ভীরা। কাশী মিশ্র ঘর না, ওটা যে রাধাকান্ত মঠ। রাধাকান্ত মঠ, কিন্তু কাশী মিশ্রের ছিল আগে, মানে মহারাজ ওনাকেই থাকতে দিয়েছিলেন মনে হচ্ছে। পরে চৈতন্য মহাপ্রভুকে ওটা অফার করা গেল, কিন্তু তার ভিতরে ওই 8x something যে ঘরটা ছোট রুম সেইটা গম্ভীরা। সেটা জানি জানি। এনিওয়েজ, রাম ভদ্রাচার্য আর ভগবানাচার্য। भगवान आचार्य প্রভু পদে রহিলা দুহে, ছাড়ি সব কার্য। प्रभु पादे रोइला दुई छाड़ी सब कार्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी हिमाद्री प्रभु जी क्या बोले कि जो काशी मिश्र का घर था वही गंभीरा है, ऐसे बोले क्या अभी? हाँ, प्रभु यही बोल रहा है। प्रभु महाराज ने भी यही बोला था। गंभीरा पूरा, यानी काशी मिश्र का घर पूरा राधाकांत मठ है। गंभीरा वो जो अंदर वाला जो स्पेशल रूम है, गंभीर जो महाप्रभु आ रहे थे वो रूम है गंभीर। यही हिमाद्री प्रभु बोला। ये सुमन महाराज भी बोले थे कि गंभीरा ही काशी मिश्र का घर है, यानी राधाकांत मठ काशी मिश्र का घर है। गंभीरा तो एक रूम है। उतना क्लियर महाराज नहीं बताए, खाली यही बोले काशी मिश्र का घर ही गंभीरा है। उतना छोटा कैसे उनका घर होगा? गंभीरा तो एक रूम है, कोठरी टाइप से। हाँ। एनीवेज, हमको भी थोड़ा देखना पड़ेगा मे बी। परे रामभद्र आचार्य, आचले उसीलिए ना किसी को कोट नहीं करना चाहिए। मैं बताया था ना एक बार, कोई महाराज प्रवचन दे रहा था और कोई ऑडियंस में आकर बोला, महाराज एक प्रश्न है, आपने ये बोला लेकिन हम उस दिन फलाना फलाना महाराज ने ऐसे ऐसे बोला था। तुरंत तुरंत महाराज ने बोला ऐसा किसी को कोट मत कीजिएगा। क्यों क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला, आपने क्या सुना, आप यहाँ क्या बोल रहे हैं। हाँ, वो तो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ तो ऐसे कोट करने से यही बोलना पड़ेगा यस और नो। यस बोलेंगे तो मैं गलत, नो बोलूंगा तो महाराज गलत, दोनों में अपराध हो जाएगा। माने दोनों में फिर कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। इसीलिए डोंट टेक नेम्स। बोल सकता है आई हर्ड समवेयर, बिकॉज मोमेंट इट केम महाराज तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, उधर तो बात ही खत्म हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके ओके प्रभु। পরে রামভদ্র আচার্য এবং ভগবান আচার্য সব রকম জড়জাগতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করে রইলেন। তো ये दो को कौन दिया था? ये शायद ये রামভদ্র আচার্য আর ভগবান আচার্যকে কে দিয়েছিল? ওই ওনার পুত্র না, রামানন্দ রায়ের ভাইগুলো। রামানন্দ রায়ের পিতা এসেছিলেন না 4 পুত্র নিয়ে, আর বললেন এরা দুজন আপনার সঙ্গে থাকবে, কারণ মনেই নেই। चारों को लेके आए थे एक बार तो। ভবানন্দ রায়, হ্যাঁ, ওনার 4 পুত্র ছিল কি রামভদ্রাচার্য আর ভগবান আচার্য। नहीं तो मुझे ये नाम नहीं था। यही नाम तो चिलो ना बोल। वाणी निधि और ये सब वाणीनाथ, निधि नाम। ऐसे कुछ था, पटना है। उसमें से खाली एक जन को ही दिए थे, वो वहां गए थे। ये दो कहाँ से आ गया? हरे कृष्णा प्रभु जी, वाणीनाथ, गोपीनाथ, कलानिधि, सुधा निधि था नाम। अच्छा, फिर दो सेवक दिया था ना, उन्होंने 2 पुत्र को रखा था, ऐसे कुछ बोला था ना। फिर पढ़िए आप जहाँ है। एक पुत्र को रखे थे ना, नहीं, केवल वाणीनाथ को रखे थे। वाणीनाथ को उनके सेवा में छोड़ दिए थे। हाँ, फिर ये रामभद्र जो उनके शरीर का सेवा करते थे, यही पढ़ाए थे आप। ये लिखा हुआ है इधर। পরে রামভদ্র আচার্য এবং ভগবান আচার্য সব রকমের জড়জাগতিক কার্যকলাপ, আচ্ছা কোই হোগা, কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করে রইলেন। কাশীশ্বর গোসাই আইলা আর দিনে। काशीश्वर गोसाई आइला आर दीने, সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা নিজ স্থানে। सम्मान कोरिया प्रभु राखिला निज स्थाने। ओके, लेट्स सी कौन कितना ध्यान से सुन रहा है। ये काशीश्वर मिश्रा कौन था? हाथ उठाइएगा, ठीक है? गूगल हाथ उठाइए, कोई बोलिएगा मत। मैं हिंदू, ओके, पंकज प्रभु को याद है, ओके। और थोड़ा हिंदू मेरा पीछे पीछे आ रहा है। सुषमा अग्रवाल माता जी, सुमना गौरंगी माता जी, यस पंकज प्रभु।
काशीश्वर मिश्र और गोविंद दो जन को उनके ईश्वरपुरी ने भेजा था। गोविंद आगे पहुंच गया था, बोले कि वो पीछे पीछे आ गए। हाँ करेक्ट। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी ने इन दोनों दोनों उनका गुरु भाई हो गया ना वो एक्चुअली। या तो भेजा था महाप्रभु के सेवा करने के लिए। तो गोविंद तो आ गया डायरेक्ट महाप्रभु को सेवा करने के लिए, लेकिन काशीश्वर मिश्र वो तीर्थ भ्रमण के लिए गया था, हमको जितना दूर याद है। Yes. কাশীশ্বর গোসাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে জগন্নাথ দেবের দর্শন করাতে নিয়ে যেতেন। তারপরের দিন কাশীশ্বর গোসাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এলেন এবং মহাপ্রভু অনেক সম্মান প্রদর্শন করে তাকে তার কাছে রাখলেন। প্রভুকে লইয়া করান ঈশ্বর দর্শন, প্রভুকে লইয়া করান ঈশ্বর দর্শন, আগে লোক ভিড় সব করি নিবারণ। আগে লোক ভিড় সব করি নিবারণ। শোকার্থ কাশীশ্বর গোসাইজি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে জগন্নাথ দেবের দর্শন করতে গিয়ে নিয়ে যেতেন এবং নামনের লোকেদের ভিড় সরিয়ে তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যাবার পথ করে দিতেন। হরি বল। जैसा हाँ हरि बोल, क्राउड कंट्रोल सेवा। ओके, महाप्रभु को प्रभु उस समय लगता है इतना भीड़ नहीं होता होगा जगन्नाथ टेम्पल में जितना अभी होता है। नहीं क्यों, जरूर भीड़ होता होगा। जगन्नाथ जगत के नाथ, सब जगतवासी आएगा ना उनको दर्शन करने। लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं अभी तो ठूस ठूस के धक्का मार मार के सब एक दूसरे को पहुंचा देते हैं। महाप्रभु को तो वैसा नहीं कर सकते ना हम लोग। महाप्रभु को छोड़ देंगे, महाप्रभु सब भीड़ के साथ धक्का खा के अंदर चला जाएगा, तो भगवान ऐसा प्रभु एक बात है कि जो मंदिर में हम लोग दर्शन करते हैं जगन्नाथ प्रभु के, तो उनका तो दर्शन बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि दूर से दर्शन होता है। कोई देखता है कोई नहीं देखता, बस धक्का खा के निकलते जाता है। ऐसा क्यों व्यवस्था है, हमको तो समझ में नहीं आता। ऐसे ही बेस्ट है व्यवस्था। प्रभु भगवान दर्शन करना है, जगन्नाथ देव का दर्शन करना है तो सिर्फ खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, आपको सब ले जाएगा, ऐसे ही आपको पहुंचा देगा सामने। ऐसे ही पहुंचते प्रभु। वहाँ पर ऐसा अंधेरा रहता है ना, कुछ जल्दी दिखता भी नहीं है। नहीं नहीं प्रभु, भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छा जगन्नाथ दिखता है, बहुत चेष्टा करने के बाद दिखा है, लेकिन रह गया साधारण रूप से नहीं दिखता। उल्टा गेट पर ही तो दिख जाता है प्रभु जी, सबसे ऊंचा में वहीं पर पूरा दिख जाता है। जगन्नाथ में इधर उधर ठेल खा गया, जिसको अच्छा से देखने के लिए प्रभु जी 2-3 बार चेष्टा करना पड़ता है। हम लोग जब बॉम्बे में पढ़ाई करते थे तो ये बैंड्रा से उठते थे चर्च गेट जाने के लिए, सिर्फ प्लेटफॉर्म में खड़ा हो जाते थे ट्रेन के सामने, माने ट्रेन के सामने, माने वो गेट के सामने, वो ऑटोमेटिक लोग उठा देते थे। फिर जब चर्च गेट उतरना है बस खड़े रहो, आप ऑटोमेटिक उतर जाएंगे, आपको सब लोग सब उतार देगा, आपको चिंता नहीं है। लेकिन शरीर में दम रहेगा प्रभु तभी खड़ा रह पाएंगे, वरना आपके ऊपर से लोग निकल जाए। বুঝি এইবারে যে আমাদের ইসকনের গ্রুপ 750 লোক গেছিল না, এর জন্য ভিড় হতে পারে। মানে এমন হয় যে দেখতেই পাই না, এত লাইনের পিছনে থাকি, ওই স্রোতের মধ্যে দেখাই যায়। 15,000 लोग गया था परिक्रमा में। 15,000 लोग गए थे, 15,000 सब ग्रुप 15,000 मिला के। अरे वाह। 14,000 बाहर का भी भीड़ था ना, बाहर के भी भीड़ था ना, बाहर का भी भीड़ था, इसलिए ज्यादा भीड़ हो गया। और 3 दिन छुट्टी पड़ गया था, शनिवार सोमवार, तो ज्यादा भीड़ हुआ। যত নদ নদী জইছে সমুদ্রে মিলায়। নেক্সট যত নদ নদী রয়েছে সমুদ্র মিলায়, ওইছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাহা তাহা হয়। ওইছে মহাপ্রভু ভক্ত যাহা তাহা হয়। সমস্ত নদ নদী যেভাবে এসে সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তরা যে যেখানে ছিলেন সেখান থেকে এসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। হরি বল। সবে আসে মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে, सबे आसी मिलिला प्रभु श्री चरणे। महामंदिर माता का टाइम था। इसके आगे बोल चुके थे। महामंत्री बोल दिया, पिंकी माता जी बोल दिए। প্রভু কৃপা করি সবাই রাখিল নিজ স্থানে। प्रभु कृपा करी सवाय राखिले निजे स्थाने। সকলে এসে যেহেতু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাই তাদের প্রতি কৃপা করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাদের সকলকে তার কাছে রেখেছিলেন, सबको अपने पास ही रखा। এই তো কহিলু প্রভুর বৈষ্ণব মিলন, এই তো कहले प्रभु वैष्णव मिलन।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য চরণ। হরি বল। सुनने पाए चैतन्य चरण। এইভাবে আমি সমস্ত ভক্তদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের বর্ণনা করলাম। যিনি এই বর্ণনা শ্রবণ করেন তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় লাভ করেন। হরি বল। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। শ্রী রূপ রঘুনাথ পদে যারাস, শ্রী রূপ রঘুনাথ পদে জাগাস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস। চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস। শ্লোকার্থ। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীপাদ পদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাদের কৃপা প্রার্থনা করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণ দাস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করছি। ইতি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথ পুরীতে প্রত্যাবর্তন এবং বৈষ্ণব সহ মিলন নামক শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার দশম পরিচ্ছেদের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সম্পূর্ণ। হরে কৃষ্ণ। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। अमृतम की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतमानंदे हरि 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 बोल हरि बोल। प्रभु की जय।